Kishan, a young farmer, was complaining of fever, headache, and myalgia. Gradually, he developed yellow discoloration of the skin and sclera, that is, jaundice. On examination, he had conjunctival suffusion and hepatosplenomegaly. His blood count showed neutrophilia with thrombocytopenia. Liver function test showed elevated conjugated bilirubin with mild elevation of transaminases. He was also found to be oligouric and uremic. Okay. So he has fever, headache, myalgia, jaundice, that is yellow discoloration of skin and sclera. Liver is impaired, kidney is impaired, so he is oligouric and uremic. इसके अलावा there is hepatosplenomegaly, then neutrophilia is there with thrombocytopenia. So what is the etiological agent and how is this disease transmitted? The disease is leptospirosis and the agent is leptospira. And the disease is leptospirosis. The agent is leptospira. Leptospira comprises of two species, that is Leptospira interrogens and Leptospira biflexa. So there are two species of Leptospira, Leptospira interrogens and Leptospira biflexa, and they are further classified into serovars and serogroups based on the lipopolysaccharide antigen. Leptospirosis has two species, Leptospira interrogens and Leptospira biflexa. Interrogens and biflexa, they are further divided into serovars and serogroups based on the lipopolysaccharide antigen. See, Leptospira interrogens, it causes leptospirosis or Weil's disease. Leptospirosis or Weil's disease is a zoonotic disease that can cause liver and kidney damage. ठीक है, इसलिए LFT एबनॉर्मल था और किडनी भी डैमेज था, उसके कारण ओलिगोयूरिया और यूरेमिक पेशेंट था. ठीक है, इसके अलावा इट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड इवन डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. सो ये जो लेप्टोस्पायरोसिस या व्हील्स डिजीज़ है, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़. ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस इज़ अ जूनोटिक डिजीज़ और इसके कारण लिवर और किडनी डैमेज हो सकता है, मेनिंजाइटिस, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन और इवन डेथ भी हो सकता है. Let's see the mode of transmission. Leptospirosis is zoonotic. ठीक है, that is direct human to human transmission does not occur. Human to human transmission नहीं होता. तो ये फिर कैसे transmit होता है? It is transmitted by indirect contact with water, moist soil, wet surfaces contaminated with animal urine. ठीक है, वाटर या मॉइस्ट सॉइल या वेट सरफेस जो कि एनिमल यूरिन से कॉन्टामिनेटेड हो, उनसे कॉन्टैक्ट के कारण ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके यूरिन से कॉन्टामिनेटेड वाटर, मॉइस्ट सॉइल या वेट सरफेस से कॉन्टैक्ट के कारण ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है. दूसरा है, इट कैन स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with urine and products of parturition, placenta of the infected animal. दूसरा है, जो एनिमल का यूरिन है या प्रोडक्ट्स ऑफ पार्चुरेशन है या प्लासेंटा है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाना. ठीक है, पहला था वाटर या सॉइल या वेट सरफेस से इनडायरेक्ट कांटेक्ट होना, वो वाटर, सॉइल या वेट सरफेस पे दे वर ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड विथ एनिमल यूरिन. दूसरा तरीका है ट्रांसमिशन का डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यूरिन and the products of parturition or placenta of the infected animal. What are the sources of leptospirosis? Rats, dogs, cattle, pigs are the important sources. Even asymptomatic animals can transmit the infection via urine. Okay, तो important sources में rats, dogs, cattle और pigs है. ठीक है, although
100 से ज़्यादा एनिमल के कारण ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है. जो इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज़ रैट्स, डॉग्स, कैटल्स एंड पिग्स. ये जो है इसका सीज़न क्या है, मेनली रेनी सीज़न या पोस्ट मॉनसून पीरियड. रिस्क फैक्टर्स में वी हैव लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या तो सीवर वर्कर्स हो गए या फार्मर्स हो गए. अर्बन एंड रूरल स्लम एरियाज, रेनफॉल एंड फ्लड्स. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स लाइक एग्रीकल्चर वर्कर्स में राइस फील्ड प्लांटर्स, फिशरमैन, sewer workers, and all the persons who are liable to work in rodent infested environment are at increased risk. ठीक है, तो सीज़न क्या है, रेनी सीज़न या पोस्ट मॉनसून पीरियड. रिस्क फैक्टर्स में है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्लम एरियाज, रेनफॉल एंड फ्लड्स. और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है रिस्क पे, राइस फील्ड प्लांटर्स, फिशरमैन, सीवर वर्कर्स, या कोई भी ऐसा इंसान जिसका जॉब रोडेंट इन्फेस्टेड एनवायरनमेंट में हो, दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस. लेप्टोस्पायरोसिस का 3 R होता है, देयर इज 3 R. द 3 important epidemiological determinants for leptospirosis include exposure to rodents, rainfall, and rice field. So the 3 R are rodents, rainfall, and rice field. These are the 3 important epidemiological determinants: rodents, rainfall, and rice field. Let's see the pathogenesis of leptospirosis. There are two distinct phases of pathogenesis following leptospiral infection. Two distinct phases. First phase is septicemic phase. Second phase is immune phase. First phase, septicemic phase. Second phase is immune phase. The first phase या septicemic phase, after entering through the mucosa, that is conjunctival या oral mucosa या abraded skin. ठीक है, तो ये जो लेप्टोस्पायरा है ये या तो म्यूकोसा से एंटर कर सकता है या abraded skin से. Leptospira enterogens spill over to the bloodstream and then disseminate hematogenously to various organs including brain, liver, lungs, heart, and kidney. They cause vascular damage. Spirochetes can be found in the walls of capillaries, medium and large sized vessels. The exact mechanism of vascular damage is not clear. Penetration and invasion of the tissues is due to active motility and release of hyaluronidase. ठीक है, तो पहला फेज है सेप्टिसेमिक फेज. ठीक है, लेप्टोस्पायरा एंटर कैसे करेगा, या तो म्यूकोसा से, ओरल या कंजक्टाइवल म्यूकोसा से, या अब्रेडेड स्किन में. उसके बाद फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एंड देन इट विल डिसएमिनेट हीमाटोजीनसली. ठीक है, फिर ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स तक रीच करेगा जैसे कि ब्रेन, लिवर, हार्ट और किडनी. इट विल रीच ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लिवर, हार्ट एंड किडनी. और फिर वहाँ पे ये वैस्कुलर डैमेज करता है. ठीक है, जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो कैपिलरीज या वेसल्स के वॉल्स में मिलते हैं. ठीक है, वैस्कुलर डैमेज का एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, बट penetration or invasion of tissues is because of active motility and release of hyaluronidase. ठीक है, so penetration or invasion of tissues क्यों होता है, because of active motility and the release of enzyme hyaluronidase. The second phase is immune phase. ठीक है, as antibodies develop, spirochetes disappear from the blood. ठीक है, they will disappear from the blood. Antigen antibody complexes are deposited in various organs. Renal colonization. Bacilli become adherent to the proximal renal tubular brush border and are excreted in urine. ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में 2 मेन फेज होता है. पहला फेज है
फर्स्ट फेज या सेप्टिसेमिक फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस है वो एंटर कैसे करेगा, म्यूकोजा या अब्रेडेड स्किन से, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ से इसका हेमाटोजीनस डिसएमिनेशन होता है, ये काफ़ी सारे ऑर्गन तक पहुँचता है जैसे कि ब्रेन, लिवर, लंग, हार्ट और किडनी, और वहाँ पे ये वैस्कुलर डैमेज करता है। स्पायरोकीट्स जो है वो वेसल्स और कैपिलरीज के वॉल में मिलेंगे एंड दे विल कॉज वैस्कुलर डैमेज। ठीक है, इनके पास एक्टिव मोटिलिटी होता है एंड दे रिलीज हायालूरोनिडेज, जिसके कारण पेनिट्रेशन और इन्वेशन ऑफ टिश्यूज़ होता है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन और इन्वेशन ऑफ टिश्यू हो रहा है एक्टिव मोटिलिटी और रिलीज ऑफ हायालूरोनिडेज के कारण। सेकेंड फेज इज़ नोन एज इम्यून फेज। इम्यून फेज मतलब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर जाते हैं। इम्यून फेज में ब्लड से स्पायरोकीट्स डिसअपियर हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स काफ़ी सारे ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें रीनल कॉलोनाइजेशन होता है, जो बैसिलाई है दे बिकम adherent to the proximal renal tubular brush border and are excreted in urine. Next is clinical manifestation of leptospirosis. Incubation period is around 10 days, that is 1 to 30 days. In general, the manifestation can be divided into two distinct clinical syndromes. First is mild anicteric febrile illness. Second is Weil's disease. So incubation period on an average is 10 days. Manifestation दो टाइप का है मेनली। ठीक है, दो टाइप के क्लिनिकल सिंड्रोम्स में डिवाइडेड हो सकता है। पहला है माइल्ड anicteric febrile illness, दूसरा है Weil's disease. Mild anicteric febrile illness, it occurs in 90% of the patients. ये biphasic है. A septicemic phase occurs first followed by immune phase. ठीक है, जो हमने पढ़ा था सेप्टिसेमिक फेज में वो ब्लड में रहता है, फिर वहाँ से उसका हिमाटोजीनस डिसेमिनेशन होता है। इम्यून फेज में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इट प्रेजेंट्स एज फ्लू लाइक इलनेस विथ फीवर्स, चिल्स, हेडेक्स, कंजक्टाइवल सफिशन, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड मायाल्जिया। पहला फेज है माइल्ड एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, ये 90% केसेस में होता है। ये बाईफेजिक है, दो फेज होगा, पहले सेप्टिसेमिक फेज और फिर इम्यून फेज। ठीक है, जो पहला चीज़ है माइल्ड एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस, ये बाईफेजिक होता है, दो फेज होता है, सेप्टिसेमिक और इम्यून फेज। इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, फ्लू लाइक इलनेस, फीवर, चिल्स, हेडेक, कंजक्टाइवल सफिशन, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड मायाल्जिया। तो पहला स्टेज है माइल्ड एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस। ठीक है, ये बाईफेजिक होता है। जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ द सेप्टिसेमिक स्टेज, जो कि 3 से 10 दिन का होता है। सेकेंड स्टेज इज़ इम्यून स्टेज, जो कि 10 to 30 डेज में तक होता है। सेप्टिसेमिक फेज में वी हैव फीवर, मायाल्जिया, हेडेक, कंजक्टाइवल सफिशन, एब्डोमिनल पेन, फेरेंजियल एरिथमा विथाउट एक्सुडेट्स एंड वोमिटिंग। ठीक है, सेप्टिसेमिक फेज या फर्स्ट स्टेज में फीवर, मायाल्जिया, हेडेक, कंजक्टाइवल सफिशन, एब्डोमिनल पेन, फेरेंजियल एरिथमिया विथाउट एक्सुडेट और वोमिटिंग होगा। सेकेंड फेज में मेनिंजाइटिस, यूवीआइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, रैश, फीवर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब होता है। ठीक है, सेकेंड फेज में मेनिंजाइटिस, यूवीआइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, रैश, फीवर और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज में या सेप्टिसेमिक स्टेज में ब्लड और सीएसएफ से आइसोलेशन होता है। सेकेंड स्टेज में यूरिन से आइसोलेशन होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में रीनल कॉलोनाइजेशन होता है, यूरिन में जो लेप्टोस्पायरा है वो एक्सक्रीट होगा। तो सेकेंड स्टेज या इम्यून स्टेज में यूरिन से आइसोलेशन होता है। सीरम IgM is absent in first stage, it is present in the second stage. First stage is susceptible to antibodies, antibiotics. Second stage is refractory to treatment.
माइल्ड एनीसेंट्रिक एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस 2 स्टेज का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट इज सेप्टिसेमिक, 3 से 10 दिन। सिम्टम्स फीवर, मायालजिया, हेडेक, कंजक्टाइवल सफिशन, एब्डोमिनल पेन, फेरेंजियल इरिथमा without exudates, vomiting, isolation from blood and CSF, serum IgM is absent and it is susceptible to antibiotics। सेकेंड स्टेज 10 to 30 days तक होता है, इम्यून स्टेज है। इसमें मेनिंजाइटिस, यूवियाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, रैश, फीवर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलता है, आइसोलेशन फ्रॉम यूरिन एंड सीरम IgM is present and it is refractory to treatment। जो सेकेंड स्टेज है दैट इज व्हील्स डिजीज। व्हील्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हेपेटोरेनल हीमोरेजिक सिंड्रोम। इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ icteric illness and occurs in 10% patients। 90% patients में एन icteric था, 10% people में सीवियर फॉर्म ऑफ icteric illness होता है, दैट इज व्हील्स डिजीज। टिपिकल biphasic course may not be present। ठीक है, इट ऑफन प्रोग्रेसेस रैपिडली विथ अ केस फैटिलिटी ऑफ 5 to 10 15%। ठीक है, इसमें जो फैटिलिटी रेट है दैट इज़ 5 to 15%। व्हील डिजीज ऑल्सो नोन एज हेपेटोरेनल हीमोरेजिक सिंड्रोम, सीवियर फॉर्म ऑफ इक्टेरिक इलनेस, 10% पेशेंट्स में होता है। इसमें जो टिपिकल बाईफेजिक फेज है वो ज़रूरी नहीं है हो, और ये रैपिडली प्रोग्रेस करता है। इट हैज़ अ फैटिलिटी रेट ऑफ 5 to 15%। सी व्हील्स डिजीज़, इसमें 2 स्टेज हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 स्टेज हो। पहला स्टेज वही सेप्टिसेमिक स्टेज 3 से 10 दिन के लिए, सेकेंड इम्यून स्टेज 10 to 30 days। व्हील्स डिजीज़ में हाई ग्रेड फीवर होता है। इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ इक्टेरिक इलनेस। जॉन्डिस होगा, ठीक है, लिवर जॉन्डिस 5 to 10%, एंड देयर विल बी रेज्ड लिवर एंजाइम्स। ठीक है, व्हील्स डिजीज़ में जॉन्डिस होता है एंड there is raised liver enzymes। Hemorrhages will be present, pulmonary hemorrhage, petechiae, purpura, conjunctival hemorrhage and gastrointestinal hemorrhage। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डिस, raised liver enzymes, pulmonary hemorrhage, conjunctival hemorrhage, gastrointestinal hemorrhage, petechiae and purpura। किडनी में it will have raised serum urea and creatinine and renal failure। ठीक है, सीरम यूरिया ज़्यादा होगा, क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा और रीनल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो लिवर इन्फेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जॉन्डिस है, रेस्ड लिवर एंजाइम्स है, किडनी भी इफेक्ट हो रहा है, हीमरेजेस भी है। ठीक है, पल्मोनरी हीमरेज, कंजक्टाइवल हीमरेज, पेटिके प्यूरप्यूरा, किडनी इफेक्ट है तो रेस्ड सीरम यूरिया, रेस्ड क्रिएटिनिन एंड रीनल फेलियर हो रहा है। दैट्स वाई व्हील्स डिजीज़ इज नोन एज हेपेटोरेनल हीमरेजिक डिजीज़। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम होंगी। फर्स्ट स्टेज में जो आइसोलेशन होगा वो ब्लड या CSF से होगा, सेकेंड स्टेज में यूरिन से होगा। फर्स्ट स्टेज में सीरम IgM एब्सेंट होता है, सेकेंड स्टेज में सीरम IgM प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्टेज ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, सेकेंड स्टेज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो 90% केसेस में माइल्ड एंड इक्टेरिक फेब्राइल इलनेस होता है और 10% केसेस में व्हील्स डिजीज़ होता है, दैट इज़ हेपेटोरेनल हीमोरेजिक सिंड्रोम। Let's see the treatment of leptospirosis. Mild leptospirosis should be treated with oral doxycycline 100 milligram twice a day for 7 days। अगर mild leptospirosis है then give oral doxycycline 100 milligram twice a day for 7 days। Amoxicillin is the alternative to oral doxycycline। Severe leptospirosis है then penicillin is the drug of choice, 1.5 million units IV। ठीक है, 1.5 million units IV 4 times a day for 7 days। Alternative being ceftriaxone and cefotaxime। तो माइल्ड लेप्टोस्पायरोसिस के लिए ओरल डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन इज़ द ऑल्टरनेटिव। सीवियर लेप्टोस्पायरोसिस के लिए पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस।
ठीक है, 1.5 million यूनिट्स IV 4 times a day for 7 days. Alternative is ceftriaxone or cefotaxime.